सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपके बुक के अंदर ऐसे ब्लू कलर के क्वेश्चंस दिए होंगे, तो चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। आंसर क्या होगा? Yes, an object can have zero displacement. Example, an object travels from point A and comes back to the same point A, then displacement is zero. दूसरा क्वेश्चन क्या है? A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ करेंगे। हम इसको लेबल कर देंगे ABCD एंड द साइड इज 10 मीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 40 seconds is equals to the boundary of square field, which means it is the perimeter of square field, equals to 1 round of the square field. T is equals to 2 minute 20 seconds को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे? 2 इंटू 60 प्लस 20। वाई? क्योंकि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 140 सेकेंड्स। तो हमें क्या निकालना है? बाय द एंड ऑफ 140 सेकेंड्स फार्मर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो इन 40 seconds, 1 round of the square field is covered. In 1 second, 1 by 40 round of the square field is covered, and in 140 seconds, 140 upon 40 equals to 3.5 rounds of the square field is covered. ठीक है? So in 140 seconds, he covers 3.5 rounds of the square field. So when he starts at A, he completes 3 rounds of field and covers 0.5 round of the square field at C. इसका मतलब इनिशियल पोजीशन इज A एंड फाइनल पोजीशन इज C. ठीक है? तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? इट विल बी AC, राइट? बिकॉज A इज द इनिशियल पोजीशन, C इज द फाइनल पोजीशन, योर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी AC. अब इसमें देखो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। AB square plus BC square is equals to AC square. That means 10 square plus 10 square is equals to AC square, or AC square is equals to 200. That means AC is equals to square root of 200, that is 10 root 2. Okay? Therefore, displacement is AC equals to 10 root 2 meters. अच्छा, last question क्या है? Which of the following is true for displacement? It cannot be zero. False. We know that displacement can be zero. B, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. ये भी false है, क्योंकि आपका displacement is always less than or equal to distance. Okay? अच्छा, दूसरे set of जो blue questions है ऐसे वाले, वो देखते हैं। Distinguish between speed and velocity. Speed क्या होता है? It is distance traveled by a moving body per unit time. ठीक है? And velocity क्या होगा? It is distance traveled by a moving body in a particular direction per unit time. ठीक है? Speed और velocity में क्या difference आ जाता है? Direction का. Okay? Speed is a scalar quantity because इसमें खाली आपका magnitude होता है। Velocity is a vector quantity. क्यों? Because it has magnitude and direction. अच्छा, second question, under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? तो किस condition में होगा? Magnitude of average velocity is equals to average speed when the object moves in a straight line path. Okay? जब straight line path होता है, in that case, magnitude of average velocity is equals to the magnitude of average speed. What does the odometer of an automobile measure?
The odometer of an automobile measures the distance traveled by the automobile. ठीक है? What does the path of an object look like when it is in uniform motion? For uniform motion, the path looks like a straight line path. ठीक है? Fifth question क्या है? During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि there is a spaceship in the sky and there is a ground station at the ground. ठीक है? स्पेसशिप से एक क्या कहते हैं सिग्नल रीच करता है टू द ग्राउंड स्टेशन और हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है. ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? एट t इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स, इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं. दैट विल बी 5 इंटू 60, 300 सेकेंड्स. सिग्नल का स्पीड क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. तो सिंपल है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्पीड है 3 इंटू 10 पावर 8 एंड टाइम इज 300 सेकेंड्स. तो आपका ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स. सो द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप from ground station is 9 into 10 to the power 9 meters. Okay? दूसरे set of NCERT questions same chapter motion chapter के आगे और डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ क्या दे रखा है? When will you say a body is in uniform acceleration and second non-uniform acceleration? तो क्या होगा? Uniform acceleration कब होगा? When the velocity of an object changes by equal amounts in equal intervals of time. Example, acceleration due to gravity. Second, non-uniform acceleration क्या होता है? When the velocity of an object changes by unequal amounts in equal intervals of time. Example, acceleration of a train from one station to another. ठीक है? Second question क्या है? A bus decreases its speed from 80 kilometers per hour to 60 kilometers per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ठीक है? तो क्या दे रखा है? Initial velocity दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर्स. Final velocity दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर्स. टाइम है 5 सेकेंड्स और हमें acceleration निकालना है. तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u 80 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? वी नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ये आपका 200/9 विच इज़ 22.22 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी आपका है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा आपका? 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, that is 50/3, that is 16.66 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इट इज़ v माइनस u बाई टी, दैट इज 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5, दैट इज माइनस 5.56 अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज द बस इज स्लोइंग डाउन, राइट? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द बस इज स्लोइंग डाउन, उसका स्पीड कम हो जा रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव में आएगा. ठीक है? सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी आसान है. इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज 10 मिनट्स एंड एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले v जो है फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 5/18. क्यों?
because 1 kilometer per hour is equals to 5/18 meter per second. ओके तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपका निकल के आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड. ओके टाइम इज 10 मिनट्स तो इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 10 into 60 इट्स इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स. ओके तो अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. v minus u upon t, that is 11.11 minus 0 upon 600, that is 0.018 meter per second square. Always mention the units. जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे आपको हमेशा यूनिट्स मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है. एंड इट इज़ बेस्ट टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू SI यूनिट्स फर्स्ट. राइट. हमने वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया और टाइम को हमने मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट किया. तो ये कन्वर्ट करने के बाद हमारा एक्सेलरेशन आराम से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा. अच्छा आगे का देखते हैं. अच्छा अब ये है NCERT के अंदर गिवन एग्जाम्पल्स. ठीक है ना, वो भी आपको रीड करना है. ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस देम. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. An object travels 16 meters in 4 seconds and then another 16 minutes in 2 seconds. What is the average speed of the object? क्या होगा? Total distance traveled कितना है? 16 meter plus 16 meter, that is 32 meters. Total time taken कितना है? 4 second plus 2 second, that is 6 seconds. तो average speed क्या हो जाएगा? Total distance upon total time taken, that is 32 by 6 equals to 5.33. ओके तो ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा. ओके द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप कितना हो जाएगा? फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर माइनस द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर, है ना. ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा ट्रिप का. दैट मीन्स 2400 माइनस 2000 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स. ओके एवरेज और टाइम कितना दे रखा है? 8 आवर्स. तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो वो आपका क्या बन जाएगा? 400 अपॉन 8, that is 50 kilometers per hour. ठीक है, सो एवरेज स्पीड इज 50 kilometers per hour. उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. तो किलोमीटर पर आवर में तो कैलकुलेट कर लिया. अब मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर्स पर आवर को हम कन्वर्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18. क्यों? बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो आपका क्या बन जाएगा? ये 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 13.88 मीटर पर सेकेंड. ओके अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है? Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें हम क्या कहते हैं? एक पूल ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ 90 मीटर्स लॉन्ग. क्या कह रहे हैं? उषा आपका क्या कहते हैं? शी गोज फ्रॉम वन एंड दैट इज ए to the other end of the pool B and then she also comes back to A, correct? So Usha covers 180 meters in 1 minute. She starts from A, goes to B and then swims back to A, correct? तो मतलब ये एक राउंड ट्रिप हो गया. A से B को जाती है फिर B से A को वापस आती है. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू AB प्लस BA, दैट इज 90 प्लस 90, 180 मीटर्स. शी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट. ओके तो 1 मिनट को भी हम क्या कहते हैं? 60 क्या कहते हैं? सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो आपका एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 180 बाई 60, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. ओके तो एवरेज स्पीड हमारा यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड निकल के आया है. व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? अब ये ध्यान से देखना है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इज 0. क्यों? बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू ए, राइट. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उषा का सेम ही है ना. वो ए से स्टार्ट करती है, बी को जाती है एंड देन शी कम्स बैक टू ए. सो द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम. अब क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 0/1, दैट इज 0. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एवरेज स्पीड cannot be 0 but average velocity is 0. Okay, and this usually happens when the object moves from one point and comes back to its starting point. Okay, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. कैसे करेंगे? अच्छा, पहले केस में हम कहते हैं A1 एक्सेलरेशन 1 क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी v1 माइनस u1 अपॉन t1. मतलब हम पहला जो वेलोसिटी है उसको हम 1 करके ऐसे डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इनिशियल वेलोसिटी u1 इज 0, v1 इज 6 मीटर पर सेकेंड, t1 इज 30 सेकेंड्स. तो इसके बेसिस पे हम a1 कैलकुलेट करेंगे. ओके, और u2 है आपका सेकेंड केस में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका 6 मीटर पर सेकेंड है, v2 है 4 मीटर पर सेकेंड, t2 है 5 सेकेंड्स और हमें a2 कैलकुलेट करना है. राइट, तो पहले केस में क्या हो जाएगा? a1 इज इक्वल्स टू v1 माइनस u1 बाई t1, दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 बाई 30, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये आपका a1 निकल के आ गया. सेकेंड केस में a2 क्या होगा? v2 माइनस u2 बाई t2, that is 4 minus 6 upon 5, that is equals to minus 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो a2 आपका माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसमें आपने ध्यान देना है कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन. ओके, तो आज के लिए इतना ही सही. इन द नेक्स्ट क्लास हम NCERT के थोड़े बहुत बैक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं.